everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. In this session today, we are going to talk about Aristotle's poetics, literary criticism part. We have already covered Plato in literary criticism, and this is going to be the second lecture in that series wherein Aristotle will be done. Before beginning, if you are interested in taking the full course, so we have this offer that is going on. That is, if you are taking for 3 months, that is going to cost you around 4,500. You will get the entire course in that price. So if you think that you need that revision and you can cover it up in 3 months, if you've already covered something earlier and you're revising and you're not a total beginner, then definitely you can take this, and in 3 months you will get the access to all the classes from the beginning till the end. Of course, अभी तक जितना हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग, उसके आगे आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. सो यू कैन थिंक अबाउट दैट एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. Other thing is our YouTube membership, in which smaller videos are done. So you can also, if you are learning different things in literature and you want to stay connected, you can also take that membership. जो है हमारा यूट्यूब पे, उसका ज्वाइन का बटन आपको नीचे मिलेगा, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड कोर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा आपको मिल जाएगा, मेरा कॉन्टैक्ट. यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड आस्क मी. लेट अस स्टार्ट विद एरिस्टोटल. Aristotle was a Greek philosopher and he was born somewhere around 834 BCE, passed away in 384 BCE and passed away in 322. And he was the most distinguished student of Plato. And सबसे अच्छी बात ये लगती है that even after being the student of Plato, he had learned everything from him. He did not agree with his thoughts. There were a lot of difference between Plato's thoughts and Aristotle's thought, wherein Plato was very much against mimesis. Aristotle has given us a very nice answer to all the accusations that Plato had laid upon poetry. Whatever things Plato had said, that poetry has an emotional appeal, it's all very quick. You get a muse and you write poetry, and it's twice removed from reality. All of these accusations that he had put against poetry, Aristotle has answered all of them one by one. So he is one of the most influential thinkers in Western philosophy, and he has contributed to various fields: metaphysics, ethics, politics, logic, theory, etc. बाकी सब कुछ अच्छा है, but when it comes to feminism, somewhere his brain goes off, and he's not spoken very well about women. Anyway, let's talk about criticism in this session for now. So he was born in Stagira. It's a town in North Greece, and he studied at Plato's academy in Athens for nearly 20 years. Uske baad, he also became the tutor for Alexander the Great. Before founding his own school, इनके अपने स्कूल का नाम क्या था? Lyceum. Yeah, this is Lyceum. तो very important, okay? Has been in the exam also. Alexander the Great, I think you all have heard of. इंडिया में सिकंदर के नाम से हम जानते हैं. इनका जो अप्रोच था टू नॉलेज वॉज वेरी एम्पिरिकल. ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा एम्फसाइज करते थे कि हम लोग जो सीखते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं, whatever knowledge we gain. So it was all empirical, which set him apart from his teacher Plato, because Plato was more abstract. उनके methods बहुत idealistic थे. So in poetics, Aristotle very systematically उन्होंने पोइट्री को एनालाइज किया है, लेकिन मेनली ट्रेजेडी और एपिक पे फोकस रहा है उनका. ऐसा कहते हैं कि एक और पार्ट था शायद जो कॉमेडी पे इन्होंने लिखा होगा, बट इट इज़ लॉस्ट. पोइटिक्स ऑल्सो यू कैन फुली रीड इट. इट्स अ वेरी थिन बुक, तो आप पूरी भी पढ़ सकते हो, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होने का स्कोप नहीं रहेगा फिर. तो इन्होंने क्या किया है, ट्रेजेडी एपिक पोइट्री को एनालाइज किया है, उसका क्या पर्पस है, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड बाय हिम वेरी सिस्टमैटिकली.
6 एलिमेंट्स पे फोकस किया है, जैसे प्लॉट, कैरेक्टर, स्पेक्टिकल, थॉट, डिक्शन एट्सेट्रा. कथारसिस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर टर्म्स. ऑल्दो इन्होंने बहुत बार कथारसिस को यूज़ नहीं किया है अपने पोइटिक्स में, लेकिन it comes out as a very distinct term in his poetics. Now we're going to talk about poetics. हम उसकी पूरी summary करेंगे आज, ठीक है. It is one of the earliest and most influential works of criticism in Western tradition, focusing on tragedy, also upon epic poetry. The work examines the nature of poetry, उसके components क्या हैं, उसका effect क्या हुआ audience पे, ये सारी चीज़ें. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि definition. एरिस्टोटल ने डिफाइन कैसे किया है पोइट्री को. उन्होंने सबसे पहले बात की है कि पोइट्री एक इमिटेशन है, माइमेसिस होता है. और वो कहते हैं कि जितना भी आर्ट है दुनिया में वो सब इमिटेट करता है लाइफ को, और पोइट्री वो भी इमिटेशन ही है ऑफ ह्यूमन एक्शन. नाउ वी ऑल नो प्लेटो ने इसी चीज़ को तो अक्यूज़ किया था कि भाई इसीलिए तो मैं अपनी रिपब्लिक में पोइट्स को आने ही नहीं दूंगा, बिकॉज वो तो इमिटेटर्स है. लेकिन एरिस्टोटल ने क्या कहा, इमिटेशन हमारे बेसिक नेचर में है. अ चाइल्ड लर्न्स बाय इमिटेटिंग. आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा है, वो एक सर्टन एज में आके उसके आसपास बच्चे के जो हो रहा है उस चीज़ को इमिटेट करता है. जो आप बोलोगे वो बच्चा बोलेगा, जो आप करोगे वो बच्चा करेगा. बेसिक नेचर है हमारी इमिटेट करके सीखना. तो एरिस्टोटल वही कहते हैं कि यार प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमन नेचर है इमिटेशन, सो इट्स फाइन. देन एपिक पोइट्री लाइक इलियड एंड ओडिसी होनी चाहिए. ट्रेजेडी लाइक सोफोक्लिस इडिपस रेक्स. कॉमेडी लाइक एरिस्टोफेन्स प्लेज. डायथ्रैम्बिक पोइट्री, जो हिम्स लिखे जाते थे डायोनिसस को, डायथ्रैम्स कहते हैं उनको, ठीक है. तो ग्रीक्स में एक पूरा फेस्टिवल होता था जो डायोनिसस के लिए उनके ट्रिब्यूट में रखा जाता था. वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन्स होते थे. फॉर एग्जांपल शिवरात्रि मेला होता है, आप लोगों ने अगर देखा है तो. हम लोग शिवरात्रि पे क्या करते हैं, वी सेलिब्रेट द मैरिज, राइट. तो उसमें हम बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं. सिमिलरली डायोनिसस के लिए भी वहाँ पे एक पूरा फेस्टिवल होता था. वहाँ पे ये जो बड़े बड़े प्ले राइट्स थे इनका कॉम्पिटिशन भी होता था. तो या देन ट्रेजेडी एंड एपिक पोइट्री आर इज मेन फोकस. नाउ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, आई कोट, एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज नंबर 1 serious, complete and of a certain magnitude. In language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not narrative, through pity and fear, effecting the proper catharsis of these emotions. अगर आपको ये याद हो गई, मतलब ऑफकोर्स रट्टा नहीं लगाना है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो यही है पूरा एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म. इन्हीं को हम एक एक चीज़ करके पढ़ते हैं. सबसे पहले वो कहते हैं कि ट्रेजेडी क्या है, इमिटेशन है एक एक्शन का. कोई भी एक एक्शन हो रहा है, अब एक्शन कैसा होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड का होना चाहिए. सर्टेन मैग्नीट्यूड मतलब एक प्रॉपर लेंथ का होना चाहिए, ठीक है. लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है, उसमें आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट्स भी होने चाहिए जो कि अलग अलग सेपरेटली मिले आपको प्ले में, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, नॉट नैरेटिव. थ्रू पिटी एंड फियर, इफेक्टिंग द प्रॉपर कैथारसिस ऑफ दीज इमोशंस. जब आप देखो पिटी इवोक हो, फियर इवोक हो और कैथारसिस हो जाए. लेट्स ब्रेक दिस डाउन एंड लेट्स टॉक अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है. जस्ट एज वी डिस्कस्ड इन द डेफिनेशन, सबसे पहले इमिटेशन ऑफ एन एक्शन. सी here, imitation of an action, that is my message. So one second. Yeah, imitation of an action which is my message. So tragedy क्या है, आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ के आसपास क्या है उसको रिप्रेजेंट करती है. लाइफ, नॉट लाइफ itself, it's a imitation of that action. It should be serious and complete. The action must be significant and have a clear beginning,
क्लियर मिडल, क्लियर एंड। तो एरिस्टोटल इसमें बहुत बिलीव करते थे कि क्लियर चलना चाहिए, बिगनिंग हो, मिडल हो और एंड हो, प्रॉपर सीरियस होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, एब्सर्ड नहीं। अगर पोस्ट मॉडर्न वर्क्स को एरिस्टोटल देख लेते तो आई थिंक उनका परसेप्शन चेंज हो जाता। थर्ड इज मैग्नीट्यूड, इट मस्ट हैव अ सर्टन मैग्नीट्यूड, अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, या बहुत ही छोटा है। जैसे कि अगेन अगर सैमुअल बेकेट का ब्रेथ देख लेते तो एरिस्टोटल का क्या होता। इट शुड हैव एन अप्रोप्रिएट लेंथ। एम्बेलिश्ड लैंग्वेज, यूज़ ऑफ रिदम होना चाहिए, हारमोनी होना चाहिए, अच्छा डिक्शन यूज़ होना चाहिए ताकि आपकी आर्टिस्टिक क्वालिटी उससे एनहांस हो जाए। नेक्स्ट, एक्शन नॉट नैरेटिव। अब देखो ट्रेजेडी और एपिक में यही डिफरेंस है ना, मतलब एपिक पोइट्री जो है उसको आप नरेट करते हो, इट्स नॉट परफॉर्म्ड, वाइल ड्रामा ट्रेजेडी इज परफॉर्म्ड। सो ये जो है जब आप लिख रहे हो, इट शुड बी such that it's going to be performed, action में होना चाहिए। Tragedy is meant to be performed, not simply told. And catharsis, he talks about catharsis, audience should experience that. जब आप एक, अब आजकल हम मूवीज़ देखते हैं ज़्यादातर, तो जब आप एक मूवी देख रहे हो, अब एरिस्टोटल अगर मूवीज़ की बात करते तो वो कहते कि ऐसी होनी चाहिए ट्रैजिक मूवीज़ कि ऑडियंस में डर या पिटी, ये इमोशंस जो है वो इवोक करे। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती है जिसको देख के हम बहुत रोते हैं या हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी डर भी लग जाता है। अगर वो इमोशंस इवोक हो रहे हैं तो दैट इज़ कथारसिस। हम रो रहे हैं कोई सीन देख के, दैट इज़ कथारसिस। मतलब हमारा जो इमोशंस अंदर होते हैं ना बहुत सारे, एरिस्टोटल कहते हैं ह्यूमन बींग्स आर फुल ऑफ इमोशंस, सो मच सैडनेस, हैप्पीनेस, मल्टीपल इमोशंस आर देयर। लेकिन उन सब इमोशंस को ना बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता है और अंदर भर जाते हैं। तो जब हम एक ऐसे ट्रेजेडी देख रहे हैं या प्ले देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं आजकल सिनेरियो में, तो अगर हम वो सारे इमोशंस को बाहर निकाल रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख के, ट्रेजेडी देख के, तो हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन हो रही है, हमारे इमोशंस का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, और उसको उन्होंने कथारसिस टर्म दिया है। तो वो होना चाहिए। एरिस्टोटल से कंपेयर करें अगर तो, या सॉरी प्लेटो से कंपेयर करें अगर तो, प्लेटो ने तो इसको बिल्कुल कहा था ये तो अच्छी बात ही नहीं है। उन्होंने कहा था दैट इफ़ यू आर क्राइंग वाइल लुकिंग एट द सैडनेस ऑफ अदर पीपल, देन व्हाट विल यू डू व्हेन यू योरसेल्फ आर सैड। तो अब दूसरों के ही इमोशंस को देख के रो जा रहे हो, दुखी हो जा रहे हो, फियर आ जा रहा है, तो जब आपके ऊपर, खुद के ऊपर बीतेगी, तब तो आप कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे अपने इमोशंस को। तो प्लेटो का नज़रिया अलग था। देन वी हैव द 6 एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल ने ब्रेक डाउन किया ट्रेजेडी को इनटू 6 इसेंशियल कंपोनेंट्स। सबसे पहले है प्लॉट, एंड दिस इज टू बी रिमेंबर्ड इन सीक्वेंस। इसकी भी क्रोनोलॉजी याद करनी है। सबसे पहले प्लॉट, जिसको टर्म दिया माइथोस। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पूरे एक वर्क में, उसका प्लॉट। और प्लॉट में यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए, वन मेन स्टोरी लाइन विदाउट इररेलेवेंट सब प्लॉट्स। यूनिटी ऑफ एक्शन का क्या मतलब है? जितने भी सीन्स हैं एक वर्क में वो रेलेवेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बिना मतलब की कॉमेडी क्रिएट करने के लिए आपने एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टर डाल दिया और जो मेन स्टोरी चल रही है उससे बिल्कुल डाइग्रेस हो गए। सो दैट वुड बी अ डाइग्रेशन इन दिस यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ऐसा नहीं करना है। इट शुड फॉलो कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर, मतलब हर एक सीन रेलिवेंट होना चाहिए। दिस हैपेंड बिकॉज दिस हैड हैपेंड अर्लियर, कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए। इट कैन बी सिंपल और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। सिंपल प्लॉट क्या होता है, जिसमें जो फ्रीटैग्स पिरामिड मैंने पहले करवाया था आपको, उसमें 2 टर्म्स हैं, पेरिपेटिया और एनेग्नोरिसिस, आगे भी हम करेंगे। सिंपल प्लॉट में वो नहीं होता। जैसे मतलब अचानक से कुछ रिवील हो गया, अचानक से फॉर्च्यून चेंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। सिंपल प्लॉट इज़ सिंपल कैरेक्टर्स होंगे, एक सिंपल सी कहानी होगी और उसका एंड आ जाएगा।
कॉम्प्लेक्स में दोनों होते हैं. दैट इज द डिफरेंस. कॉम्प्लेक्स विल हैव पेरिपेटिया एंड एनिग्नोरिसिस. सेकेंड, ही टॉक्स अबाउट कैरेक्टर, ईथोस. कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए? कंसिस्टेंट होने चाहिए, बिलीवेबल कैरेक्टर्स होने चाहिए, ट्रू कैरेक्टर्स होने चाहिए. और इन्होंने इसमें बहुत फेमसली ट्रैजिक हीरो की भी बात की है. दैट ट्रैजिक हीरो जो है वो बहुत एक नोबल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसा हीरो दिखा दो जिसमें कोई गलतियां ही नहीं है. फ्लॉड होना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ ह्यूमन बींग्स आर. यस, अच्छा होना चाहिए, नोबल होना चाहिए, अच्छे काम करे, गुड डीड्स करे, बट इट शुड बी फ्लॉड, हमार्शिया, बिकॉज दैट इज वॉट विल लीड टू his downfall. Hero's downfall is often due to a mistake or error in judgment rather than outright evil. So, if hero is going to fall, of course it's a tragedy, hero का fall होगा. इसलिए नहीं होना चाहिए कि hero evil है, इसलिए होना चाहिए कि उसने कोई गलती कर दी, कोई error create कर दिया. Character. Third is thought, dianoia. Thought, the themes, the ideas and messages that are conveyed through the play. Thought भी बहुत ज़रूरी है, और ये हम कैरेक्टर्स के थ्रू ही देखते हैं. एक कैरेक्टर क्या सोच रहा है, ऑल द थॉट्स. उसके बाद है डिक्शन, जिसको कहा है लेक्सिस. व्हाट आर द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट यू आर यूजिंग. आपका स्पीच का स्टाइल क्या है जो कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं. अप्रोप्रिएट होना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से. कभी कभी हम इंडियन सीरियल्स में देखते हैं ना, एक चाइल्ड कैरेक्टर होगा लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें करेगा बच्चा कि हमें लगेगा ऐसी बातें तो ये बड़े नहीं सोच पा रहे, ये छोटा बच्चा कर दे रहा है. दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बिकॉज वो बच्चा बच्चे की तरह बात नहीं कर रहा है, वो बच्चा बिल्कुल अडल्ट्स की तरह बात कर रहा है ना. That is not appropriate to the subject, or that is not appropriate to his age. एरिस्टोटल सब्जेक्ट मैटर की भी बात करते हैं. मतलब जैसे कि एक ग्रैंड कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, सेट इन समवेयर इन द किंग्स कोर्ट एंड ऑल, कुछ ग्रैंड चल रहा है. अब वहाँ पे आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बिल्कुल लो यूज़ करो, वर्नैक्युलर. इमेजिन करो कि रामायण आप देख रहे हो, कोई रामायण बनाए, और जब आप रामायण देखते हो तो शुद्ध हिंदी है ना का यूज़ होता है उसमें, ज्येष्ठ. पर अब इमेजिन करो कि अब रामायण को आप ले लैंग्वेज में कोई बनाए, वर्नैक्युलर स्पीच में बना दे, उसमें एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे हैं, जो इविल कैरेक्टर्स हैं उनको गालियाँ भी मिल रही हैं सुनने को, और अजीब सा, मतलब इट विल साउंड वेरी फनी, राइट. इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट टू द सब्जेक्ट मैटर. दैट्स हाउ डिक्शन शुड बी अप्रोप्रिएट. मेलोडी, ऑल्सो नोन एज मेलोस, म्यूजिकल एलिमेंट ट्रेजेडी का, जिसमें कोरस होगा और ये सब. स्पेक्टिकल, ऑप्सिस, जो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो आप स्टेज पे, जो भी विजुअल एलिमेंट्स हैं, स्टेज के इफ़ेक्ट्स हैं, लाइटनिंग है, डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम है, ये सारी चीज़ें आती हैं स्पेक्टिकल में, ठीक है. ऑल्दो इट इज़ लेस, सबसे नीचे लिखा है, इट इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी, बट इट इज़ देयर ऑफ कोर्स. नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रैजिक प्लॉट, mainly the complex plot. Of course, he preferred the complex plot. Peripetia is reversal. Sudden change आ जाए हीरो के फॉर्च्यून में from good to bad. That is peripetia. चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, बहुत पैसा कमाया हीरो ने, सडनली कुछ ऐसा हो गया कि वो बैंकक्रप्ट हो गया. That is peripetia. Anagnorisis is recognition. एक ऐसा मोमेंट जब हीरो को सच का पता चलता है. Oedipus Rex, the woman I've married is my mother. Anagnorisis, full on drama. या फिर Mayor of Casterbridge, this girl is my daughter. Full drama, recognition. Catastrophe is downfall, जो tragic end होता है, that results from hero's mistakes. Catharsis, we've discussed. Emotional purification, purgation. The audience experiences a purging of emotions through pity and fear.
So the difference between tragedy and epic, he discusses that. And although both deal with serious subjects, epic is an epic जैसे रामायण महाभारत, ये सब epics हैं, और ट्रेजिडी में भी सीरियस ही सब्जेक्ट्स होते हैं. एरिस्टोटल दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं, कहते हैं तीन वो है, फीचर, फॉर्म. तो जो ट्रेजिडी है वो ड्रामा की तरह होता है. इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज. एपिक इज नरेटेड, इट इज़ रिसाइटेड. लेंथ, ट्रेजिडी इज मोर कंसाइज, लेकिन एपिक इज लॉन्ग, वेरी इलेबोरेट. स्ट्रक्चर, ट्रेजिडी का सिंगल एक्शन होगा, यूनिटी ऑफ टाइम, place, action. Although remember that Aristotle did not speak about unity of place. बिल्कुल बात ही नहीं की है. Although हम Aristotelian unities कहते हैं इनको, लेकिन ये बाद में 15th-16th centuries में जाके कुछ scholars थे जिन्होंने इनकी बात कही है. It was not Aristotle. Aristotle had only spoken about unity of action. That yes, you have to follow unity of action. He talks about unity of टाइम इन पासिंग. बिल्कुल कि आपकी मर्जी है, अच्छा है अगर आप एक रेवोल्यूशन ऑफ सन में कंप्लीट कर लो, नहीं हो पाता तो इट्स ओके, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हो, थोड़ा सा कम भी कर सकते हो. यूनिटी ऑफ प्लेस, नथिंग. तो लेकिन ट्रेजिडी में लोगों ने उसको कर दिया था इसके साथ. एपिक पोएट्री इज मल्टीपल एक्शंस, ब्रॉडर स्कोप है उसमें. मीटर, ट्रेजिडी कैन हैव मल्टीपल poetic meters. Epic is primarily in hexameter. Emotional impact, tragedy ka direct or intense. Epic is more reflective. It might also teach you some things. Keep in mind Mahabharat, Ramayana, जिसकी भी आपने कहानी सुनी है, epic या Paradise Lost, more reflective. Aristotle finally says tragedy is superior to epic poetry. Everything is down. Tragedy is the most superior thing because it has स्ट्रॉन्गर इमोशनल इम्पैक्ट एंड इट इज़ मोर फोकस्ड. ख़त्म भी हो जाएगी जल्दी, कंसाइज होती है उस तरह से. ठीक है. ट्रैजिक हीरो के बारे में इस एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है. ट्रैजिक हीरो से एक नोबल कैरेक्टर होगा, हाई स्टेटस का, पोजेसेस अ ट्रैजिक फ्लॉ. हमार्शिया में भी एक्सेसिव प्राइड होगा. यूजुअली इट्स कॉल्ड ह्यूब्रिस, एक्सेसिव प्राइड. Hamartia is the tragic flaw. या फिर he will make a critical mistake. Then he will experience a downfall due to fate, personal error, or both. Then he gains self-awareness through suffering. It evokes both pity and fear. And then he gives famous examples like Oedipus, Sophocles ka. Downfall comes from unknowingly killing his father and marrying his mother. It was not even his mistake. It was his fate. Hamlet, to be or not to be, he's that indecisive person. उसी contemplation में leads to his downfall. मैं मारूं अपने अंकल को कि नहीं मारूं, नहीं अभी रहने देता हूं, अभी ये पूजा कर रहे हैं, अभी रहने देता हूं, अभी ऐसा है, अभी indecision, procrastination, downfall. Unity of action. So Aristotle emphasizes that a tragedy should have a single coherent action without unnecessary subplot. बिना मतलब के subplots नहीं चाहिए. आप करो अगर मतलब के हैं. So this is the most important unity according to him. Time, he mentions that the events of a tragedy ideally should occur within a single day, but this is more of an observation than a strict rule. And unity of place, he doesn't mention this at all in poetics. It was later formulated by 16th 17th century critics like Racine, Nicholas Boyle. इन लोगों ने बात की है इसकी. There are more people also who have talked about it, you can see. And then the function of tragedy. So tragedy के बहुत सारे functions हैं. Moral purpose है उसका, emotional purpose है of course. तो एक moral lesson देती है आपको. हीरो के डाउनफॉल से आपको कुछ सीखने को मिलता है. सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आप encourage करता है in the audience. एक इमोशनल रिलीफ, कथारसिस से आप हल्के हो जाओगे, आपके इमोशंस बाहर निकल जाएंगे सारे. Aristotle believes that experiencing tragedy makes audiences better people by allowing them to process their emotions in a controlled way. That's why he believes tragedy is very superior. Okay? So this is a
about Aristotle's Poetics. I hope that you've understood. I'll try and give you questions also in the next session. Once again, if you want to take the full course, please let me know. Connect over me over Telegram or WhatsApp. The details are in the description box. If you haven't subscribed, please do, and please share it with other people that you know. आप अपने MA की ग्रुप्स में या जो भी आप जिसको जानते हो, आप प्लीज़ शेयर करिए. Thank you very much. I'll see you in the next session.